Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. How are you? Today I am going to take the online class. I am Mrs. Aila Khalid, your English teacher. Today I want to tell you something about the tenses. Tenses are very important to learn because this is your base of English. If you want to learn English, you have to learn about the tenses. Tenses होते क्या हैं बेटा? बेसिकली दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सेंटेंस. सेंटेंस के मतलब होते हैं जुमला, वो जुमले जो किसी पर्टिकुलर टाइम को शो करें. इट हैज थ्री मेन टाइप्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यू कैन सी एट द बोर्ड एंड a chart is given on the board. Past means the time which has gone, जिसको आप उर्दू में माजी कहते हैं. Present the current time, हाल जिसे कहा जाता है. And the future the time about to come, मतलब मुस्तकबिल. These are the three basic types. Now the past tense has four main types: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. Same, the present tense has also three main types: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. Future जिसे आप मुस्तकबिल कहते हैं, इसकी भी फोर टाइप्स हैं: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay dear students, I hope you have got information about the tenses. Now I am going to tell you about the past indefinite. Before knowing about the past indefinite, you know about the forms of verb. बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको ज़रूर लाजमी, जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी जो कॉमन वर्ड्स हैं, यू नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्पेशली बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट वाहिद वो टेंस है जिसमें हमें वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वाहिद, ये बात याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इन द पास्ट इंडेफिनिट वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ द बेसिक इज द स्ट्रक्चर. What is the structure? Structure means the formula which you have to put up whenever you use the past indefinite. Subject plus second form of verb plus object. Now what is subject? Subject होता क्या है? अब आप समझेंगे कि भाई what is the subject? वो subject means कि वो the doer, the person who is doing any job, any particular work, it is called the subject. Form of verb, as you know, what is verb? Verb means any action. कोई भी काम जो आप करेंगे, like you are walking, sleeping, writing, eating, drinking, these are all verb. मतलब कोई भी काम जो है वो verb कहलाता है. Object. What is object? Object means the thing. वो चीज़ जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं object. Now I am giving you some examples. We played cricket. Like we played cricket में we the doer कौन है? We. इसके उर्दू में मीनिंग होगी कि हमने क्रिकेट खेली. वी इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया डूअर को कहते हैं, काम करने वाला. इसमें कौन है? वी. फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सेकंड लगी है. वर्ब मतलब खेला, काम है. ऑब्वियसली दिस इज द एक्शन प्लेड. दिस इज द सेकंड फॉर्म. एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट. किस पे काम हो रहा है बच्चों? क्रिकेट पे. तो दिस इज द क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट. ओके. Now I am giving you the another example, like you made lame excuses. You is the subject, made is the verb and object is lame excuses. इसके उर्दू में मीनिंग है कि तुमने आपने झूठे बहाने बनाए. Okay, done. Now the number 3 is I went to the zoo yesterday. I is the subject, went as you know this is the verb. Second form of go. Go, went and gone. तो went जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है go की. टू द जू. जू में आपको पता है कि चिड़ियाघर को कहते हैं. एंड yesterday EW देखें, ये मैंने EW क्यों लिखा है? EW मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड्स. तो समटाइम हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. yesterday माने कल. कल मैं जू गया था या गई थी. तो एक्स्ट्रा वर्ड्स हम डालते हैं. अब आप ये ना समझे कि जी हमने तो एक्स्ट्रा वर्ड डाल ही नहीं सकते. दैट्स वाई मैंने यूज किया है एक्स्ट्रा वर्ड yesterday. ओके. फिर मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट वाहिद वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. और किसी टेंस में, क्योंकि ऑन द होल जो है आपके 12 टेंसेस बन रहे हैं, 12 टेंसेस में से ओनली वन टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, दिस इज द
structure of past indefinite, subject plus second form of verb plus object. Subject means the doer, काम करने वाला, जो जुमले जिससे स्टार्ट हो रहा है काम. ऑब्वियसली हमारे मोस्टली सेंटेंसेस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, काम करने वाले से. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एनी एक्शन वर्ब, मैंने बता दिया काम को कहते हैं. ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पे काम हो रहा हो. Okay, I hope you have got information about the past indefinite, and in the other videos I will tell you more about the other tenses. Okay, thank you students. I have told you about the affirmative sentences of past indefinite. Now I am going to tell you about the negative sentences. Negative का मतलब होता है बच्चों मनफी जुमले, वो जुमले जिसमें नहीं या नॉट का इस्तेमाल हो. अब आपको मैं देखें स्ट्रक्चर बताया था इसका कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. बट नाउ व्हाट अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस? तो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस द फॉर्मूला नाउ हैज बीन चेंज्ड बिकॉज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट. Remember one important point that whenever we are writing or speaking any negative tense of past indefinite, negative sentence of past indefinite, we have to use first form of verb with did. Did के साथ बेटा चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सवालिया जुमले हो, we have to use first form of verb with did. Now I am giving you the example like I wrote an interesting story कि मैंने एक दिलचस्प कहानी लिखी, इसके मतलब है ना. अब आप इसको नेगेटिव मनफी जुमला क्या बनेगा कि मैंने एक दिलचस्प कहानी नहीं लिखी. तो इसकी इंग्लिश में आपको किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे? आई रोट. अभी रोट जो है दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अल्टीमेटली चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो क्या होगा? डेटा मैंने आपको बताया, जब हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं अगेन आपको इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग. हमेशा याद रखिए कि डिड के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. आई डिड नॉट राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के इसके मतलब है कि मैंने एक दिलचस्प कहानी नहीं लिखी. नाउ आई एम गिविंग यू द सेकंड एग्जांपल. शी मेड अ डिलीशियस केक. मतलब हुआ इसका कि उसने एक मजेदार केक बनाया. इसका कैसे नेगेटिव बनेगा? शी डिड नॉट मेक अ डिलीशियस केक, कि उसने एक मजेदार केक नहीं बनाया. एक और आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल लाइक यू टोल्ड अ लाई. यू टोल्ड अ लाई मीन्स you told a lie. I am using the second form of verb. of second form of verb से आपको फौरन आपको क्लिक होगा कि दी ये सेकंड फॉर्म है, दैट्स व्हाई दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. और इसका कि तुमने झूठ बोला या आपने झूठ बोला. इसका नेगेटिव बनेगा एज यू नो वी यूज्ड इट नॉट. यू डिड नॉट टेल अ lie. वो चेंज टू टेल कि आपने या तुमने झूठ नहीं बोला. ओके स्टूडेंट्स, लाइक आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल्स लाइक यू स्पोक द ट्रूथ. तुमने सच बोला तो यू डिड नॉट स्पीक. स्पोक चेंज इनटू स्पीक. एंड मैंने फिर आपको दोबारा आपसे कहूँगी कि आपके पास अभी आप यू आर स्टेइंग एट योर होम, आप अपने घरों पे हैं, तो आप जितना ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करें और जितने ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करोगे बेटा इतना आपका फ़ायदा है. बिकॉज फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बगैर यू कैन नॉट लर्न टेंसेज. लाइक पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे एज आई टोल्ड यू बिफोर, बट इन द परफेक्ट टेंसेज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म. वेदर वो पास्ट की हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, यू हैव टू यूज इन ऑल द परफेक्ट टेंसेज यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी बेटा तो आप यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश. तो आपको अगर इंग्लिश, ऑब्वियसली हर बच्चे को इंग्लिश सीखने का शौक है, इट इज द की ऑफ सक्सेस. तो यू हैव टू लर्न ऑल द टेंसेज, ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब.